So in brief, I will discuss about this lesson. We'll discuss about this person, Venkateshwaran Iyer or Venkat Iyer. Born in 1966, Iyer is a science graduate and a certified project management professional. He last worked in IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. So here is the brief information about our author. Born in 1966, Venkateshwaran Iyer is a science graduate and basically he was in management field. One of the renowned institution, one of the renowned company, that is IBM. In that company, he was project manager. But he left that job and he left that IT industry also, and he decided to work on organic farm, that is on organic, what we can say, farming, and he wants to create that awareness among the people. Okay, and he did that thing in 2004. His book Moong or Microchips trace his transition from techie to farmer over a period of 15 to 17 years. It was not a career change, but a lifestyle change I was looking for. He says about his decision to shift to quite a environs of village. He insisted on practicing organic farming from the outset. He was resolute in spite of numerous challenges which he faced. Today, not only does he deliver lectures on organic farming, but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in organic field to propagate organic farming, to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. Means, after quitting the job from IT industry, he has decided to work on the fields. Okay, he has decided to give his life to organic farming, and once he will get the confidence in that organic farming, he started giving the lectures, he started creating the awareness among the people, and now it becomes a very good organization. Along with that, he is working with different non-government organizations, NGOs, and he is giving that information to all the farmers that why this organic farming is little bit more important. तो दोस्तों, एक बात आपको पता चली होगी कि वेंकटेश्वरन अय्यर, इन्होंने अपना जो भी जॉब था, काफ़ी अच्छा जॉब था IT सेक्टर में, IT फील्ड में, वो उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने एक ही चीज़ डिसाइड कर दी, और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी कि नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट माई सेल्फ टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसके बाद मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसी के लिए मैं अपना पूरा लाइफ, मैं पूरी अपनी जो भी करियर है उसमें ही सेट करूँगा, उसमें ही आगे जाके जो सारी चीज़ें हैं वो डेडिकेट करूँगा. सो द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस. फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लेसन इज द फर्स्ट क्रॉप. It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moong and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly inspecting the plants. So, when Venkatesh Iyer, decided to go with the field, that time he purchased that land in the month of the April, and he took his first crop, and that crop was moong. जब अपने वेंकटेश्वरन अय्यर इन्होंने अपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो खेती है वो जब उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलो हम शुरू कर सकते हैं, हम करेंगे, तब उन्होंने फर्स्ट उनका जो क्रॉप था वो मूंग लिया था, और वो उनके लिए बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. वो कैसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो धीरे धीरे हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं. When he was in that field, जब वो खेती के लिए वहाँ पे पहुँचे, when he had decided to reach in that field, he saw his first crop, and at the same time he was able to see that bright orange color just because of our sun, and that sun is enriching the beauty of that crop. Along with that, he was not wearing the chappals, he was not wearing anything, so bare feet he was walking in the field and inspecting the plant. So that was very thrilling experience for him. Around me
were rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe and there was a light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. When our author is observing this moong tree, that time we are getting the entire details about this moong tree. It is 2 feet tall. Okay, that pods, जिसे हम कहते हैं कि आगे जाके वो काफ़ी अच्छी तरह से राइप हो जाएगी, वो जो पॉड्स है, वो जो मूंग के हमें दाने मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, और उसमें से वो जो नेचर है, वो नेचर्स ब्यूटी जो है, वो भी वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, और कुछ ही दिनों में उन्हें वो मूंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगा, उसके हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते थे. एंड दिस वॉज आवर ऑथर्स फर्स्ट experience, so that's why he was feeling exhilarated. And this is what his experience is. I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब सुबह सुबह मैं वहाँ पे पहुँचा था और ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर सकता था, देख सकता था और ये महसूस भी कर सकता था कि हाँ चलो कितनी अच्छी तरह से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ, ये फील्ड में ये मूंग और ये सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सनराइज आई कैन एक्सपीरियंस दैट ब्यूटी. और उसी के साथ जो सारी चीज़ें आजू बाजू में भी वहाँ पे थी वो भी मैं देख सकता. आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड एंड दैट आई वॉज लुकिंग फॉर और लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज अ फार्मर. Actually, I was not able to recognize that thing. I was not able to, we can say that, experience that thing, feel that thing, that yes, this is my first crop and I am able to see this crop. At the same time, I am owning this crop. So this was very thrilling experience, and at the same time, I was feeling very happy. I was excited just because of this thing that yes, this is my farm and I am going to grow this moong. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with farming. जब मैंने ये खेती कुछ दिनों के लिए वहाँ पे ली थी तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं चलो मुझे कुछ वक्त लेना चाहिए और उसके बाद ये जो सारी खेती है या फार्मिंग है मैं शुरू कर सकता हूँ. लेकिन what we can say, in very first month I had begun with this farming, but Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. लेकिन जो मेरे लैंड ब्रोकर थे वो थे मोरू दादा, और वो जो मोरू दादा थे उन्होंने मुझे चीज़ बताई थी कि चलो अगर हमने लैंड खरीद ही ली है, ये ज़मीन अपने पास है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें. We need to crop, we need to take the crop, we need to yes plant something. और उन्हीं की वजह से मैंने वो जो खेती करना शुरू कर दिया. मूंग जो है वो कहाँ से तुम्हें मैंने परचेस किया, उनकी वजह से ही, उनके सजेशंस के हिसाब से मैं कर रहा था. लेकिन जो मेरे दिमाग में था ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका स्टडी मेरा चल रहा था और उसी के ऊपर मैं काम भी कर रहा था. लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मोरू दादा आई वेंट फॉर दिस मूंग क्रॉप. मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. लेकिन उसके बाद भी मोरू दादा मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि चलो we'll begin with the farming and at the same time we can bring the seeds from adjacent state Gujarat. Okay, we'll bring that moong seeds from Surat. I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plug the land and quickly planted moong over all the place. और उसके बाद मोरू दादा मेरे साथ थे. उन्होंने उनका ही ट्रैक्टर लेके वहाँ पे वो जो मूंग प्लांट करना था वो भी कर दिया. हमने 10 किलोग्राम जो है वो सूरत से मूंग लेके आए और वहाँ से हमने खेती जो है मूंग की वो शुरू कर दी. A few days later we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. इससे पहले मैंने कभी भी मूंग की खेती नहीं देखी थी और मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी कि चलो
मैं मेरे खेत में मूंग जो है यहाँ पे उगा रहा हूँ, आई एम एबल टू प्लांट दिस, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Villeparle in Mumbai. ये वही एक्सपीरियंस था जब मैं छोटा बच्चा था. तब मैंने एक हिबिस्कस, जिसे हम मराठी में जासवंत कहते हैं, वो मैंने प्लांट किया था. और जब वो छोटा ट्री था, वो छोटा प्लांट था, वो आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बन गया, और उसके ऊपर कुछ मैंने वहाँ पे फ्लावर्स भी देखे थे. और ये सारी चीज़ें मैंने जब मैं रेलवे क्वार्टर्स में रहता था विले पार्ले मुंबई में, तब जाके ये एक्सपीरियंस की थी, और ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. उसके बाद मैं आज ही मेरे खुद के खेती में, खुद के फील्ड में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, और ये बहुत ज़्यादा मुझे खुश करने वाली थी. आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस. और उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल किसके लिए था? वो था मोरू दादा के लिए. द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू was spray some pesticide on the plants. He claimed that it would give a higher yield, and this was something we did not want to do. और यहाँ से वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और मोरू दादा और अपने जो ऑथर है वेंकट अय्यर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है टक्कर शुरू हो जाती है. वो दोनों के विचार एक दूसरे से जो है वो नहीं पता. ये जो ऑर्थोडॉक्स फील्ड और फार्मिंग है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स ओके यूज होते हैं, तो ये मैं यूज नहीं करना चाहता था. और मोरू दादा भी मुझे वही बता रहा था कि यस वी नीड टू यूज दिस पेस्टिसाइड्स ओके फॉर स्प्रेइंग, जिससे हम कहते हैं कि हाँ पेस्टिसाइड्स अगर कर दिए तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे क्रॉप मिलेंगे. फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छे वो ग्रो हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको वहाँ पे जो है वो मूंग मिल जाएगा. लेकिन नहीं, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हमें मिल सकता है. ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो मोरू दादा बता रहा था, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए मैं खुद तैयार नहीं था. We were very clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. और जब मैंने उसे ये मेरा डिसीजन बता दिया कि मैं कोई भी केमिकल यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, और उसके बारे में जो भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तब उसका रिएक्शन यही था. He reacted as it we had suggested harakiri. If we had suggested harakiri means what? अगर आप ऐसे ही खेती करना चाहते हो तो इसका मतलब यही है कि आप खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद को मार रहे हो. दिस इज व्हाट द सुसाइड, दिस इज व्हाट द हराकिरी इज, अ फॉर्मल वे ऑफ किलिंग योरसेल्फ बाय कटिंग ओपन योर स्टमक विद अ सॉर्ड. खुद को तलवार की नोक पे रख के खुद को ही मार दो, वैसी ही चीज यहाँ पे होती है. इट टुक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू एंश्योर दैट मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज एनी केमिकल्स ऑन द फार्म. और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा कि हाँ, अगर आपको खेती करनी ही है और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो आपको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं. दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेज. और वो उनको ये चीज़ बिल्कुल ही पता नहीं थी, और वो कन्विंस नहीं थे कि विदाउट केमिकल्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट पेस्टिसाइड्स वी कैन ग्रो द प्लांट्स. लेकिन मैंने वो चीज़ उनको बताई, उनको कन्विंस किया, और फाइनली वो मान गए कि हाँ चलो हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे. देन contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे हमें दिया गया है, और वो चीज़ ये है कि कॉन्ट्ररी टू वॉट एवरीवन हैड टोल्ड अस. और इसके बाद भी नेचर ने जो है वो अपना काम कर दिया, और नेचर को अपना काम करने के लिए किसी से भी घूस लेने की जरूरत नाही पडते, कुणालाही लाच देण्याची त्यांना गरज पडत नाही. आणि आम्हाला खूप छान पद्धतीने इथे मुगाचं पीक मिळालं. सून इट वॉज हार्वेस्ट टाइम अँड वी मॅनेज अ रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स ऑफ मूंग. और उसके बाद जब हमने 10 किलो ग्रो किया था, 10 किलो वहाँ पे हार्वेस्टिंग या कल्टिवेटिंग करने के बाद वहाँ पे प्लांट किया था, तो हमें लगभग 300 किलो मूंग वहाँ पे मिल गया. एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग विथ इट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals.
और जब मुझे वो मूंग की खेती करने के बाद दो बहुत बढ़िया चीजें वहां पे मिली। पहली चीज मिली कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं खेती कर सकता हूं, और वो जो कॉन्फिडेंस है वो मिल गया। दूसरी चीज मुझे सबसे बढ़िया ये मिली कि यस दिस इज फर्टाइल लैंड एंड आई कैन ग्रो द क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट पेस्टिसाइड्स, आई कैन ग्रो द थिंग्स, एंड इट वाज अ मेजर मॉरल बूस्टर। और यहीं से वेंकट अय्यर जी को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ वी कैन गो विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो लुक माय फ्रेंड्स, this is what the first part of this lesson. Now we are moving towards the second part, and which is very interesting, the scent of rice. The first year I was late for rice sowing season and I had to resort to growing GR4 variety that was short term and recommended by the agriculture officers of Coast Guard. तो मैंने जब ये खेती शुरू कर दी और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं चलो मैं जो राइस वो ग्रो करूंगा, और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे कोस्ट गार्ड में उन्होंने मुझे बता दिया कि आप GR4 जो है वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। The next year we decided that we should start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. उस साल तो वो सारी GR4 तो वहाँ पे हमने ग्रो कर दी। I was decided that I will not go with these what you can say hybrid generations और हाइब्रिड टाइप ऑफ राइस। आई वांट टू ग्रो समथिंग ट्रेडिशनल, और जो ट्रेडिशनल वैरायटी है राइस की उसके लिए मैंने धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वी हैड read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers। और मैं ये करना चाहता था क्योंकि जो ट्रेडिशनल राइस है, ट्रेडिशनल राइस वैरायटी है, उनके लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं लगते हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स नहीं लगते हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो भी हो सकते हैं। सो दीज वैरायटीज वेर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेड पेस्ट। We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all, और हमें कोई भी केमिकल्स ज्यादा वहां पे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, और वो काफी स्ट्रांग होते हैं, उनकी वैरायटी काफी स्ट्रांग होती है, नेचर के साथ भी काफी अच्छे रह सकते हैं, और उसी की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफी अच्छी तरह से हो जाएगी, और ट्रेडिशनल जो है वैरायटी वो फिर एक बार हम काफी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrids this year। और पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस जो था मेरा यील्ड में से, उन्होंने मुझे एक लेसन दे दिया था कि क्या कि मैं इस साल कोई भी हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं कोई भी नई वैरायटी जो भी है वो यहाँ पे मैं प्लांट नहीं करूंगा। I will grow only traditional variety of rice and at the same time I will not use any kind of chemical. Now in April 2005 we started to look for a good variety of traditional rice। ठीक है, उन्होंने डिसीजन तो कर लिया, लेकिन आगे जाके ये ट्रेडिशनल वैरायटी मिलेगी कहाँ, और सबसे बढ़िया वैरायटी मुझे मिलेगी कहाँ। So he had started looking for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Pet had switched over to hybrids. The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for desi variety as they called it. तो उसी के बाद जो भी मेरे आजू बाजू के दोस्त थे मुंबई में, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि जिनकी भी खेती वहाँ पे पेट में है वो कुछ पहले दिन वहाँ पे वो सेंटेड वैरायटी जो थी उन्होंने लगा दी। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनको जब मैंने ये देसी वैरायटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और यू आर क्रेजी मैन, वी आर नॉट प्लांटिंग दीज थिंग्स, वी आर प्लांटिंग ओनली हाइब्रिड वैरायटीज। तो आप ये जो सब सोच रहे हो और ये जो सब कर रहे हो ना, ये चीजें कोई भी नहीं करता है। आप क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे पड़े हो? व्हाई यू आर सर्चिंग दिस ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस? डोंट डू दैट, डोंट गो विद दिस थिंग्स। ओके, और ये सारी चीजें सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया था। My regular visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any results and we were almost giving up hope.
उसके बाद भी मैंने आजू बाजू के जितने भी लोग थे उनसे बात की, जितने भी आजू बाजू के विलेजेस थे वहां पे मैंने विजिट कर दी, फिर भी कोई भी वहां पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लगभग मेरी जो भी डिसाइडेड की हुई चीजें थी वो खत्म ही होने वाली थी। I decided to give it one last try and spoke to बबन्स फादर and some other elders। लेकिन उसके बाद भी मैंने बबन और उसके जो फादर थे और जो भी कोई एल्डर्स वहां पे थे उनके साथ बात करने के लिए मैंने डिसाइड किया, I want to go with this last try। After many meaningful conversations, they mentioned the name of कसबाई। और ये सारी चीजें होने के बाद जिसके लिए हम ये लेसन पढ़ रहे हैं वो वैरायटी हमें यहाँ पे मिल जाती है और उस वैरायटी का नाम है कसबाई। After many meaningful conversations, they mentioned the name of kasbai। Kasbai is a traditional long-grain rice variety which has a distinct aroma, through much milder than basmati। हमें सबसे बढ़िया राइस एक ही पता है, वो है बासमती, लेकिन बासमती से भी काफी बढ़िया उसकी सुगंध, काफी अच्छी टेस्ट और काफी अच्छी वैरायटी वो जो है वो हम कह सकते हैं कसबाई है। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड ग्रोइंग इट ईयर्स एगो, बट दे ऑल शुक देयर हेड्स व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीड्स एंड टोल्ड मी दैट इट हैड डिसअपीयर्ड। लेकिन जब इस वैरायटी के बारे में, उसके क्रॉप के बारे में, उसके ईल्ड के बारे में, अगर मुझे इसके सीड्स चाहिए तो उसके बारे में जब मैंने ये सारे लोगों से पूछा तो सारे लोगों ने मुझे एक ही बात बताई कि हाँ, कुछ साल पहले तक हम इसे ग्रो कर सकते थे, करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये जो क्रॉप है वो, और उसी की वजह से अपनी खेती में से धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो गया है, खत्म हो गया है। शायद ही आपको वो क्रॉप जो है, वो सीड है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। लेकिन वो कसबाई के बारे में जितनी भी हमने वहां पे चीजें सुनी थी, कुछ कथाएं सुनी थी, तो उसकी वजह से तो मैं डिटरमाइन हो गया और मैंने डिसाइड कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं कसबाई, ये जो वैरायटी है राइस की, वो मैं लेके ही रहूंगा। मैं उसके सीड्स कहां से भी मिले मैं उसे लेकर ही रहूंगा। वी डिसाइडेड दैट इफ we did manage to get some seeds, it would be a great rice to grow। I thought the government may know something about it। A visit to agriculture officer was enlightening। मुझे ऐसा लगा कि चलो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, शायद उनके पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो आई विल गो टू द गवर्नमेंट, आई विल सी, आई विल फाइंड आउट समथिंग अबाउट दिस कसबाई। लेकिन वो जो विजिट थी वो तो कुछ और ही थी। देखिए क्या होता है, he had not even heard of this rice variety। He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name। और वो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे उन्होंने तो मुझे एक बात बताई कि ऐसे कसबाई नाम का कोई वैरायटी थी, यही मुझे पता नहीं है। अगर थी तो भी जब मैं वो फील्ड विजिट के लिए गया था तो भी मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि ऐसे नाम की कोई वैरायटी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर की वहां पे जो थी वो चीज थी, उन्होंने वैसे रिएक्शन दे दिया। देन ही rattled off the names of the number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial। Cursing myself for wasting time with him, I moved on the next destination। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ हाइब्रिड जो लेटेस्ट वैरायटीज है राइस में, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। और उसके बाद वहीं पे वो नहीं रुके कि ये तो हाइब्रिड वैरायटीज है, उसमें अगर कोई फ्री ट्रायल आपको करना है आपके खेती में तो भी यहां से आप ले जाओ, उसके लिए कोई भी आपको पैसे नहीं लगेंगे। उनको तो ट्रेडिशनल वैरायटी चाहिए थी, वेंकट जी को तो ट्रेडिशनल वैरायटी चाहिए थी और वो वहां पे उनको नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने वहां से निकलना ही अच्छा समझा। खुद को ही मैं वहां पे और गाली देता रहा, खुद को ही कहता रहा, कर्ज करता रहा कि नहीं चलो भाई, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वहां के लिए निकल गया। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कसा विच बाइज राइस फ्रॉम द आदिवासी विलेजर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आदिवासी महामंडल जो था वहां पे मैं गया, कसा नाम का जो एक गांव है वहां पे गया और वहां पे आदिवासी लोगों से, वो जो लोग थे, कुछ लोग थे वो गवर्नमेंट की
तरफ से ही वो उनकी तरफ से कुछ चीजें परचेस करते थे, लेते थे। कसबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स, लेकिन ये सारी चीजों में कसबाई का नाम कहीं पे भी नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ चीजों के लिए और ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। और गुड इंडिकेशन व्हाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर, द मार्केट itself did not recognize the rice. So if you grow it, you would not be able to sell it. However, the officer in charge had heard more knowledge of rice and did remember kasbai being sold to him a few years ago. लेकिन ये सारी चीजों के बाद अगर आप किसी को पता ही नहीं कि कसबाई है क्या, तो ये वैरायटी कौन परचेस करेगा, कौन लेगा, मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं होगी। वाई यू वांट टू ग्रो दिस yield, why you want to grow this variety। और उसी के बाद जब वो जो इंचार्ज ऑफिसर था वहां पे, उसको ये वैरायटी के बारे में, कसबाई के बारे में थोड़ी बहुत जो थी वो इन्फॉर्मेशन थी, और उसने एक चीज बताई कि हाँ, कुछ सालों पहले किसी आदमी ने उसको कसबाई वैरायटी का जो राइस है वो यहाँ पे बेचा था, वो वहां पे दिया था। एंड देन आई हैड स्टार्टेड माय जर्नी टू फाइंड आउट कसबाई वैरायटी। सो व्हेन आई इन Dhaniveri, Baban and I had started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy. लेकिन मैं वहां पे धनीवरी में जब गया तब बबन से बात की और हमने देवू हंडा नाम का एक आदमी था उसको ढूंढना शुरू किया। उनसे हमने बात भी की। वो एक ओल्ड मैन थे, अपनी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और अपने घर के सामने वो चारपाई पे बैठे हुए थे। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, अ ह्यूज हाउस एंड लार्ज फैमिली। काफी वो अच्छे पैसे वाले थे, उनके पास एकर्स ऑफ लैंड थी, बहुत अच्छी लैंड थी, काफी अच्छा घर भी था, बहुत बड़ी फैमिली भी थी। आफ्टर एक्सचेंजिंग यूजुअल बट वी कैन से दैट प्लेजेंटरीज, वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई। डिस्कशन के बाद जब हमने कसबाई की बात शुरू कर दी तो उन्होंने द मेयर मेंशन ऑफ कसबाई एंड देव हंडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। जब मैंने कसबाई का नाम बोला तो देव हंडा अपने पास्ट में चले गए। ओके, याला आपण भूतकाळात जाणं असं म्हणतो। आणि त्यानंतर मग भूतकाळातल्या सर्व गोष्टी त्यांनी हळूहळू सांगायला सुरुवात केली। हिज आईज टर्न ड्रीमी अँड विथ अ ट्रिम्बल इन हिज व्हॉइस ही टोल्ड अस हाउ द एंटायर विलेज एट वन टाइम ग्रीव ओनली कसबाई। और तब उन्होंने वो सारी चीजें कसबाई के बारे में बताने शुरू कर दी कि हाँ, पूरा विलेज कैसे कसबाई ग्रो करता था, हम कैसे वो वहां पे कसबाई जो है वो खेती करते थे। ही सेड देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल पासिंग आवर विलेज ड्यूरिंग लंच टाइम वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड आस्क फॉर अ मील, सच वॉज द अल्यूरिंग अरोमा ऑफ कसबाई। जब कोई भी यहाँ से हमारे खेती में से जाता था, गांव में से जाता था, और अगर कसबाई वहां पे पक रहा होता था तो हर कोई वहां पे रुक के बोलता था कि जो भी आपके घर में पक रहा है, जो भी राइस आपके घर में हो रहा है, वो हमें खाने के लिए दीजिए, क्योंकि उसकी जो सुगंध थी वो इतनी बढ़िया थी कि हर कोई वो वैरायटी खाना चाहता था। वो कसबाई का राइस, कसबाई जो वैरायटी है वो राइस जो है वो खाना चाहता था। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेवी अरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल हाउसेस कुक द सेम राइस। और आप सोच लीजिए कि पूरे विलेज में से अगर आपको उसी तरह की सुगंध मिलती है, हर घर में अगर कसबाई पक रहा है, तो सोच लीजिए वो कैसा नजारा होगा, कैसे वो फील करते होंगे, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट वाज। सो टुडे ही सेड नो वन ग्रू कसबाई एंड एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड varieties. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. लेकिन उसने उसके बाद ये चीज बता दी, देव हंडा जी ने हमें ये बताया कि अभी कोई भी ये कसबाई जो वैरायटी है वो ग्रो नहीं करता, वो ईल्ड नहीं करता, अपनी खेती में नहीं लगाता, क्योंकि बहुत सारी जो हाइब्रिड वैरायटीज है वो अभी आ गई है। और जो राइस मैं खाता हूँ वो भी मुझे पसंद है नहीं, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ता है, लोगों के साथ हमें जाना पड़ता है। विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, फार्मर्स वर टेम्प्टेड टू ग्रो अ सेकेंड क्रॉप एंड कसबाई. Being a long duration rice was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. दूसरी बात ये भी थी कि लोग सेकेंड क्रॉप लेना चाहते थे, और जब आपको सेकेंड क्रॉप लेना है तो फर्स्ट क्रॉप जो है उसका टर्म, उसका जो टाइम है वो कम होना चाहिए। लेकिन कसबाई को जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 8 महीने, लगभग 10 महीने भी लग सकते हैं। और
एक ही क्रॉप आप लोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, कम मुनाफा मिलेगा। तो उसी वजह से कस्बाई जो है वो खेती में से चला गया। दूसरी बात ये थी कि सेकंड क्रॉप लेने के बाद आपको उससे भी पैसे मिलते थे। तो एक ही साल में अगर आप 2 क्रॉप लेना चाहते हो तो आपको हाइब्रिड सीड्स के साथ ही जाना पड़ता है। वी नीड टू ग्रो दैट हाइब्रिड, बट वी कैन से वैरायटी, एंड दैट्स व्हाई वी डिड द सेम थिंग। ओके, वी लेफ्ट आउट विथ कसबाई and we had planted, okay, or we went with hybrid varieties. I asked why he had shifted if was so unhappy with hybrids. No one forced him to did. Okay, so did they? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. And if my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. लेकिन ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन वेंकट अय्यर जी ने उनसे पूछा कि देखिए देवू हंडा जी, आपको तो किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप ये हाइब्रिड वैरायटी आपके खेती में लगाओ, तो फिर आपने ये क्यों कसबाई छोड़ के ये हाइब्रिड वैरायटी लगाई थी? तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई, ये आंसर भी काफी अच्छा है। वो ये है कि किसी के भी खेती को वहां पे हमने जो है वो फेन्सेस हम जिसे कहते, ज्याला मराठीत आपण कुंपण असं म्हणतो, ते काही लावलेलं नाही. आमच्या शेतीला असं काही बरोबर कुंपण नाहीये. त्यामुळे मग शेजारी शेजारी जेव्हा तुमची शेत असतात तेव्हा जस्ट इमेजिन दैट सिर्फ मेरे ही खेती में वो ग्रीन लश आप देख सकते हो फील्ड है, और जब वहां से क्रॉप निकलता है तो हम अपने जो भी कैटल्स है, अपने गाय भैंस जो भी है वो वहां पे चरने के लिए वहां पे छोड़ देते हैं अपने खेती में. लेकिन उनको अगर उनकी खेती में से छोड़कर बाजू के खेत में कोई लश ग्रीन फील्ड वहां पे दिखता है तो वो सारी चीजें छोड़ के मेरे फील्ड में आ जाएंगे. तो सिर्फ मेरे खेत हरा भरा दिखेगा और बाकी सारी चीजों में या बाकी सारे खेतों में कोई भी फील्ड उनको हरा भरा नहीं दिखेगा. तो और ये बात मुझे बहुत ज्यादा सता रही थी और इसी वजह से मैंने ये चीजें छोड़ दी. लुक माय फ्रेंड्स, कभी कभी आपको जो है वो ये सारे लोगों के साथ जाना पड़ता है. समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी. ही लैमेंटेड. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. He said that yields were good initially, but of late, he reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. और उसके बाद उन्होंने वो जो उनके बैड एक्सपीरियंसेस है ये सारी चीज़ों के बारे में वो यहाँ पे बता दिए. और वो चीज़ ये थी कि जब हमने ये हाइब्रिड वैरायटी के साथ जाना शुरू कर दिया तब ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा पेस्टिसाइड्स और इससे ज्यादा हमें क्रॉप भी मिलता था, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी खेती थी वो काफ़ी अच्छी तरह से नहीं हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादा करके जो हमारी ओरिजिनल लैंड थी वो उनकी जो सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे खो रही थी और उससे हम ज़्यादा खुश भी नहीं थे. लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कोई वो हाइब्रिड वैरायटी के साथ ही जा रहा था और उससे हमें नुकसान भी हो रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे. इट वॉज एज इफ द न्यू हाइब्रिड्स हैड एन इनसैटिएबल एपिटाइट फॉर केमिकल्स. और हमें तो हर ऐसा लगता था कि ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की इतनी ज्यादा भूख ये हाइब्रिड सीड्स की थी, या हाइब्रिड सीड्स उनकी वजह से इतनी ज्यादा वो सारी चीजें ले रहे थे कि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि ये कितनी सारी चीजें खा जाएंगे. जैसे कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो इतना खाता था कि बस हमें पता ही नहीं चलता, या हम उसकी भूख वहां पे मिटा ही नहीं सकते थे. वैसे ही ये हाइब्रिड वैरायटीज जो है वो इनकी इतनी ज्यादा भूख थी केमिकल्स की, इतनी ज्यादा भूख थी पेस्टिसाइड्स और बाकी सारी चीजों की, वो उनकी जो भूख है हाइब्रिड सीड्स की वो हम कम ही नहीं कर सकते. ही टोल्ड अस दैट इवन व्हेन there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पे बहुत ज्यादा पानी आया था, ओके, फ्लड आया था, तब भी कसबाई जो है वो ग्राउंड में से हिला नहीं था, वो जम के वहीं पे रुक गया था. तो ये जो है कसबाई काफी अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा पानी भी आया वहां पे, बहुत ज्यादा रेन भी वहां पे हुई, तो भी उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी थी. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he rued.
ये सारी कस्बाई के बारे में जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी तो उसके बाद उसने एक चीज भी कही कि लुक, हम कहाँ पे आके रुके हैं, हमने कस्बाई के बारे में इतनी सारी तो इंफॉर्मेशन दे दी आपको, लेकिन आज हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. He was sure that there was not a single villager in the area who would have seeds of Kasbai. According to him, the only people who still grew it was the Adivasis in the hamlet of at the foothills of the mountains in the next village, Asabari. We bid farewell to Devhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. देवहंडा जी के साथ काफ़ी अच्छी तरह से हमने बात कर दी. उनको ये भी बताया कि हाँ ठीक है, कस्बाई तो काफ़ी अच्छी तरह से आपने ग्रो करते थे, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो हमें सीड्स मिलेंगे कहाँ, वो वैरायटी हमें मिलेगी कहाँ. तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो गांव है यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सच में वो ग्रो करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ जो आदिवासी है वो हेमलेट एरिया में रहते हैं, और वहां पे जाके अगर आपको वो असावेरी विलेज में लोग कुछ मिलेंगे और शायद उनके पास वो कस्बाई नाम का जो राइस है और उसकी वैरायटी जो है वो आपको वहां पे मिलेगी. और उन्होंने हमें एक ब्लेसिंग भी दे दी. उन्होंने कहा कि माता महालक्ष्मी जो है, यहाँ की जो गॉडेस है, वो आपको जरूर कस्बाई सीड वैरायटी वहाँ पे मिला के देंगे, या आपको जरूर वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी. In Asaviri village, we asked the Sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. जब हम असावरी विलेज में गए, वो आदिवासी पाड़ा में चले गए, तब मैंने वहाँ पे उनके जो सरपंच जी थे उनसे कहा कि हाँ, आपकी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, आदिवासी लैंग्वेज है, वो हमें पता है नहीं, तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो हमें मदद कर सकता है, जो हमारी बात आदिवासी में और आदिवासी लोगों की बात हमारी भाषा में समझा सके, तो ऐसा कोई आदमी है तो हमें दे दीजिए. He sent his assistant Jeevan with us into the hills. After a half-hour walk through thick vegetations, crossing numerous streams and ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of बोरीपाड़ा. असावरी विलेज में जाने के बाद, लगभग वहाँ पे डिस्कशन के बाद, आधे घंटे के चलने के बाद हम धीरे धीरे वो बोरीपाड़ा में चले गए. और बोरीपाड़ा में जाने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे रहते थे. There were just 2 ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. और उसके बाद लगभग 2 ही काफ़ी अच्छी तरह से घर हम वहाँ पे देख सकते थे, और ये भी देख अच्छी, मतलब क्या, हम जैसे हट कहते हैं उस तरह से, या झोपड़ी में वो कुछ लेते थे, लेकिन कैसे वैसे वहाँ पे रह रहे थे. There were just 2 ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. A wrinkled woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. और उसी घर के सामने, एक घर के सामने, एक काफ़ी एज जिनका हुआ था, ऐसी एक वुमन जिसे हम वृद्ध महिला कह सकते हैं, वो वहाँ पे बैठी थी, और उन्होंने क्यूरियोसिटी के साथ कुछ चीज़ें हमारी तरफ देख के पूछने ही वाली थी. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. She muttered in reply and we looked at Jeevan for the quick interpretation. और जिस चीज़ के लिए हम वहाँ पे आए थे, उस चीज़ के लिए हमने जीवन से पूछा. जीवन को कहा कि हाँ चलो आप उनसे पूछिए, और उसके बाद वो जो वृद्ध महिला थी उन्होंने भी आंसर दे दिया, और उसके बाद जीवन हमें कुछ चीज़ें बताने वाला था. He broke into smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we are and why we wanted it. और उसके बाद जीवन के चेहरे पे मुस्कान थी, उसने हंस दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है दादी जी, उनके पास ये वैरायटी ऑफ सीड है, ये वैरायटी ऑफ राइस है, लेकिन किसे ये चीज़ें चाहिए और क्यों आपको ये चीज़ें चाहिए, ऐसे ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें वो पूछ रही थी. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control the strong desire to hug her. Actually, जब ये इतनी सारी मशक्कत करने के बाद और जब
ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी, तब मुझे एक चीज़ पता चल रही थी कि मैं वो दादी जी को नमन करना चाहता था, उनको हक करना चाहता था, उनको गले लगाना चाहता था, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से ये चीज़ के लिए मैं वहाँ पे तरस रहा था। लेकिन आज वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही थी, मुझे वो राइस वैरायटी जो मिल रही थी, तो दादी जी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हैड फाउंड द elusive kasbah. We explained to her that we were from Pate nearby and we needed to seed it grow. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and scoffed. Jivan interpreted that she had never heard of Pate village and also did not have a weighing scale. लेकिन उसके बाद जब हमने उनसे बात की और हमें 10 किलो वो राइस चाहिए, सीड चाहिए, तो उन्होंने कुछ अच्छी तरह से वहाँ पे आंसर तो नहीं दिया, लेकिन जीवन ने एक चीज़ बताई कि इतनी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। शी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स। और वो जो है वो आपका स्केल, वो सारी चीज़ें उनको तो कुछ पता नहीं था, वो तो आदिवासी पाड़ा में रहते थे। लेकिन फुल ऑफ बास्केट हम जैसे कहते हैं, उनका जो बास्केट है वो भर के आपको वो दे देंगी। वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवल टोल्ड अस टू पे समथिंग। लेकिन हाँ, एक बास्केट भर के मैं आपको दे दूंगी। वो जो उनका हम जैसे कहते हैं उस तरह से, जैसे हम किलोग्राम्स में कुछ चीज़ें नापते हैं, वैसे उनका बास्केट जो था वो भर के मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पे करने पड़ेंगे। आई हैंडेड ओवर 100 रुपीज़ नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 मिनट्स हर फेस ब्रोक इन टू स्माइल। लेकिन जब मैंने वो 100 रुपये उनको दे दिए, उन्होंने देखा, तब फर्स्ट टाइम वो जो अम्मा जी थी, वो जो दादी जी थी, वो हंस दी। उन्होंने कहा कि हाँ चलो मैं आपको दे दूंगी। और पिछले 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में पहली बार मैं उनके चेहरे पे वो स्माइल देख रहा था। हर फेस ब्रोक इनटू स्माइल। शी नॉडेड हर हेड इन अप्रूवल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको वो कस्बाई सीड जो है वो दे दूंगी। एज वी वॉक बैक अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, लिविंग बिहाइंड अ स्माइलिंग लेडी, आई कुड नॉट हेल्प बट वॉन्डर दैट हियर, nestling in the foothills of an unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. और उसके बाद मैंने एक चीज महसूस की, और वो चीज यही थी कि जो आपकी ग्रोइंग कंट्री है, जो आपकी ग्रोइंग सिटी है, जो आपके ग्रोइंग विलेजेस है, उनसे भी काफी दूर वहां पे आदिवासी पाड़ा में जो सच्चे लोग हैं वो वहीं पे रहते हैं। और असली खेती जो है वो उनके पास है, असली रहन सहन जो है वो उनके पास है। भले ही उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, असली इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल हेरिटेज एंड कल्चर, इसके बारे में बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है, और वो ये सारे शोरगुल से बहुत ज़्यादा दूर है। आई रियली सैल्यूट देम एंड दिस इज वॉट द एक्सप्रेशन बाय वेंकट अय्यर. These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. और असली बायोडाइवर्सिटी जो है अपने अर्थ की, तो इन्होंने ही तो बचा के रखी है। They had never heard of hybrid fertilizers or pesticides. इन्होंने कभी भी हाइब्रिड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में नहीं सोचा है, नहीं सुना है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सारी चीज़ें नहीं सुनी है, क्योंकि वो नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के साथ ग्रो होते हैं, नेचर के साथ ही वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, खाते हैं। दे जस्ट ग्रीव द राइस एंड एट व्हाट दे गॉट। वो जिसी भी तरह से वो आता है उसी तरह से उसको ग्रो करते हैं, और उसी के बाद अच्छी तरह से उसको खाते हैं, रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा. हर वर्ल्ड was unspoiled by progress and for once I was grateful for that. और वो जो ओल्ड लेडी थी, वो जो अम्मा जी थी, वो जो दादी जी थी वहाँ पे, उन्होंने ये जो प्रोग्रेस थी, जिसे हम प्रगति कहते हैं, जिसे हम विकास कहते हैं, वो विकास में वो नहीं आई थी, और काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उनका जो कल्चर था, वो जो बोरीपाड़ा था, ये प्रगति की वजह से स्पॉइल नहीं हुआ था। के लिए क्या ग्रेटफुल था, उनको नतमस्तक होना चाहता, कहना चाहता था कि थैंक यू दादी जी, आज भी आप लोगों की वजह से ही हमें ये कस्बाई या वो जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड वैरायटी है, वो यहाँ पे मिल जाती है. सो दिस इज व्हाट द सेंट ऑफ राइस बाय वेंकटेश अय्यर.